Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today's lecture number 19, chapter 4, laws of motion. Yesterday we discussed about the moment of force which we call torque और moment of couple. उसके definitions वगैरह हमने देखा, expression हमने derive किया है. Today we are going to derive the important question which is usually asked in exam, unit test और board exam, right? जो 11 का एग्ज़ाम होता है, कॉलेज का एग्जाम, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन यूजुअली आता है. तो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? शो दैट द टॉर्क ड्यू टू कपल इज द सेम अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कपल. अंडरस्टैंड? या विच इज लास्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द टॉर्क ड्यू टू कपल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन. मतलब एक्स ऑफ रोटेशन भी चेंज किया तो कपल जो एक्ट हो रहा है उस पर, बॉडी पे, वो चेंज नहीं होने वाला है. करेक्ट? सो लेट्स इमेजिन द रिजिड बॉडी. ये हमने रिजिड बॉडी का डिफिनेशन देखा. द बॉडी इन विच द पार्टिकल्स, इंटरनल पार्टिकल जो दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, ओके, विच इज वेरी हार्ड, विच वी कॉल रिजिड बॉडी. सो कंसिडर द टू पॉइंट्स, राइट, ऑन विच द point of application of force is acting. So at point A and at point B, the two forces are acting. But how these two forces, which are equal in magnitude and opposite in direction, or we can say anti-parallel forces are acting. कपल का हमने डेफिनेशन क्या देखा? It is the two equal in magnitude, opposite in direction, anti-parallel forces are acting on a body at two different points that constitute couple, right? So while opening the cap of the bottle, we use a couple. While opening the tap water, टैप को जो नल का जो टैप होता है उसको भी हम ओपन करते तो वी अप्लाई दी कपल. या जब स्टेयरिंग, व्हेन वी यूज द स्टेयरिंग ऑफ व्हीकल, दैट टाइम आल्सो वी यूज अ कपल. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कपल और मोमेंट ऑफ कपल. कपल मतलब टू. तो यहाँ पे टू क्या है? टू फोर्सेस, दो फोर्स लगा रहे हैं, राइट, एट डिफरेंट पॉइंट्स. सो लेट अ कपल ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2 इन द प्लेन ऑफ द पेज एक्ट ऑन रिजिड बॉडी. यहाँ पे हमने F1 F2 फॉर कन्वीनियंस यूज किया है, बट एक्चुअली बोथ दी फोर्सेस आर इक्वल, दोनों फोर्सेस इक्वल है. सो वी कैन से F2 इज इक्वल टू माइनस F1. वाई माइनस? बिकॉज द F2 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज इन द upward direction. So that's why one will be positive and one will be negative. So let F1 is equal to F2 is equal to F, but the magnitude is same. But when we are talking about direction, one will be the negative of other. And this, whatever the distance between these two forces, that we call perpendicular distance. See, this angle is perpendicular, okay? So let me show with the some other marker so that you will get a clear idea. See, this angle is 90 degree. This angle is 90 degree, okay, and this is the line of action of force. This is the line of action of force, right? So what is the perpendicular distance between the line of action of force? That distance is known as the perpendicular distance, which we represent by r perpendicular, और उसको दूसरा नाम क्या है? आर्म ऑफ द कपल. आर्म ऑफ द कपल जैसे हम यहाँ पे ऐसे हाथ लगाए, ओके, और यहाँ पे मान लो कोई समथिंग इज देयर एंड आई एम जस्ट रोटेटिंग लाइक दिस, ओके. तो ये क्या है? हमारा आर्म है. Same way I am rotating about this point, so it is also the rotating. So that's why it is called the arm of the couple. Okay. Now let us find the torque. अभी यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लेते, right? So we will consider first point O. पहले point O लेंगे यहाँ पे. तो about this point the body will rotate. अभी देखते हैं कि resultant direction क्या होगा. The resultant direction यहाँ पे होगा anti clockwise direction. ऐसे घूमेगी body, right? It is holding like this. So we have to find the torque about the point, right, or torque due to couple at point O due to F1 and F2. Due to F1 and F2. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? we'll find the torque due to F1, because torque का फॉर्मूला क्या है? Force into perpendicular distance from the axis of rotation. That is the torque. Understand? Torque मतलब सिंगल फोर्स. Torque is the single force so that which gives the turning effect. Torque एक्चुअली क्या होता है? अभी जैसे फैन घूम रहा है, राइट, तो फैन क्यों घूम रहा है? उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, बिकॉज जो मोटर है उसके अंदर, दैट मोटर एक्सपीरियंस द टॉर्क विच एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन द ब्लेड्स ऑफ फैन, एंड द फैन के जो ब्लेड है वो घूम रहे हैं. अंडरस्टूड? सो हियर, तो वी हैव टू फाइंड द टॉर्क फर्स्ट. टॉर्क इज द सिंगल फोर्स. टॉर्क इज द सिंगल फोर्स. तो ये फोर्स और ये दो फोर्स जब लगेंगे
then there will be the moment of couple. There will be the moment of couple, right? So let's find the torque due to F1 at point O. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे about this point O. तो ये जो O point है, this O point at what distance from the A? It is at a distance of OA. कितना distance है? OA. ऐसे घूमेगा, it will be rotated like this. Fine. So let's find tau 1 is equal to about point O. The torque due to force F1 will be tau 1 is equal to the product of torque का definition क्या है, formula क्या है torque का, is the product of perpendicular distance, okay, from the axis of rotation. तो ये जो distance है, this is the line, ये जो line है ये perpendicular distance है, right? तो ये distance OA into F1, तो OA into F1, but OA क्या है, OA will be, इसका magnitude क्या होगा, OA आएगा, magnitude of OA will be, OA bar will be OA, and what is F1? F1 is the F. F1 we have already mentioned here, that is equal to force F, right? And here how the body is rotating, see, when the force acting at this is the line of action of force, इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, एज पर द घड़ी के हिसाब से देखोगे तो घड़ी का कांटा ऐसा घूमता है क्लॉकवाइज, ओके, लेकिन ये घड़ी के कांटे के उल्टे घूम रहा है. तो यहाँ पे जो बॉडी है ये फिक्स पॉइंट होगा ना, इसे रोटेट हो रही है. सी लेट मी एक्सप्लेन यू विद द अदर एग्जाम्पल. शुड आई टेक हियर समथिंग, ओके, आई विल टेक अ डस्टर हियर, राइट. सो ये बॉडी है, दिस बॉडी, सी दिस इज द ए फिक्स पॉइंट है, वो पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट इट रोटेटिंग, सी इट विल रोटेट, और फोर्स यहाँ पे लग रहा है और वो डायरेक्शन में ऊपर के अपर डायरेक्शन में, तो इट विल रोटेट लाइक दिस. सी सो व्हाट इज दैट, एंटी क्लॉकवाइज. सो बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस पॉइंट. व्हाट इट एवरीवन, फाइन. नाउ अभी फाइंड करते हैं कि टॉर्क ड्यू टू F2 अबाउट पॉइंट O. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग टॉर्क ड्यू टू F2? द टॉर्क ड्यू टू F2 एट अबाउट पॉइंट O विल बी द प्रोडक्ट ऑफ OB, डिस्टेंस क्या आएगा OB इंटू F2. लेकिन F2 का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, F2 का डायरेक्शन नीचे है और ये एक्सटीरियर पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्सटीरियर पॉइंट. सो इज दिस torque due to this force will try to rotate the body in the clockwise direction. इसको clockwise घुमाने का कोशिश करेगा, ऐसे नहीं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, रिमेंबर, ओके. एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी नेगेटिव. जो ये जो फोर्स रहेगा यहाँ पे हमको निगेटिव लेना पड़ेगा. सो लेट्स लुक एट हियर, द टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 इज टाउ 2. जैसे ऊपर टाउ 1 लिया, टाउ 1 मतलब F1 की वजह से, राइट. टाउ 1 किसकी वजह से है, फोर्स F1 फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो टाउ 1 आएगा. F2 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द टाउ 2. सो टाउ 2 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, O लिया है हमने अबाउट दिस पॉइंट O, राइट. तो ये A डिस्टेंस लेना पड़ेगा, राइट, दैट विल बी OB. सो OB इंटू फोर्स, OB इंटू फोर्स, विच फोर्स, सेकेंड फोर्स F2. बट दिस OB, इसका जो है मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो F2 है, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, F माइनस F आएगा. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको F लिया है, ओके. यहाँ पे भी ले सकते हैं, विच इज इन द डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे, राइट. सो F2 इज इक्वल टू माइनस F इंटू OB क्लॉकवाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई वी हैव टेकन क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज आउटसाइड दी, ये दोनों पॉइंट के आउटसाइड हो, थोड़ा बाजू में, एक्स ऑफ रोटेशन यहाँ पे चेंज किया है, तो इट विल ट्राई टू रोटेट. अभी देखो इसको कैसे घुमाएगा वो बॉडी रोटेशन. मान लो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी ले रहा है ऐसे, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इट विल बी नेगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिया है, ओके. ये आ गया. अभी यहाँ पे एक प्रिंसिपल है बाय यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. वो क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे, राइट, तो टोटल फोर्स क्या आएगा, इफ देर आर नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, F1 F2 F3 ऐसे एक्ट हो रहे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस विल बी टोटल फोर्स. तो टोटल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. सिमिलरली हियर, यहाँ पे ये जो टॉर्क है, जो भी टॉर्क क्रिएट हो रहा है बॉडी पे, द सम ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस दी एक रिजल्टेंट सिंगल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. तो जितने भी यहाँ पे टॉर्क एक्ट हो रहे, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2, दोनों का जो टॉर्क है टाउ 1 एंड टाउ 2, दोनों का एडिशन होगा, एंड दैट एडिशन वी विल गेट द रिजल्टेंट टॉर्क
acting on the body about the point O. We are talking about a single point O. एक पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो बच्चों टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू विच इज इक्वल टू, अभी जस्ट डू द सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम अबव. तो ये जो टाउ वन और टाउ टू का वैल्यूज है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, राइट. एफ इंटू ओ ए प्लस माइनस एफ इंटू ओ बी माइनस एफ इंटू ओ बी विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक प्लस माइनस क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो क्या आएगा बच्चों, एफ इंटू ओ ए माइनस ओ बी. अभी लुक एट द डायग्राम हियर, ओ ए दिस इज ओ ए, टोटल कितना ओ ए माइनस ओ बी, क्या बचेगा ए बी. तो ओ ए माइनस ओ बी इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी, राइट. बट ए बी क्या है, व्हाट इज दिस ए बी? ए बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच वी कॉल आर्म ऑफ द कपल. हम उसको क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ द कपल, राइट. सो द रिजल्टेंट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी which is equal to f into perpendicular distance, the perpendicular distance between the two line of action of forces. जो पैरेलल एंटी पैरेलल फोर्सेस लगा है, दोनों एंटी पैरेलल फोर्सेस के बीच में जो पर डिस्टेंस है दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड हियर एंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ दिस बॉडी. ओके, अभी यहाँ पे टॉर्क कैसे एक्ट हो रहा है बच्चों, द टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे सी if I am holding this my hand on these 2 points, okay, so it will rotate like this, fine. तो ये ऐसे घूमेगा f into a b, okay. now तो ये हुआ the torque due to t1 and tau 2 at about point O. अभी let's take the some point here, कुछ middle point लेते हैं, यहाँ पे middle में लेते हैं, दो फोर्स के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, let about point C. तो अभी पॉइंट सी ले लेते हैं. तो वेरी सिंपल, सी पॉइंट का क्या होगा बच्चों, अगर एट टॉर्क ड्यू टू F1 एट ए अबाउट सी, तो अबाउट सी क्या आएगा, ए सी, दिस डिस्टेंस ए सी मल्टीप्लाइड बाय F1, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है. अभी यहाँ पे देखो टॉर्क ड्यू टू F2 अबाउट सी क्या आएगा, बी सी, राइट, बी सी मल्टीप्लाइड बाय F2. बट यहाँ पे F2 जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज तो वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज द बॉडी इज रोटेटिंग. जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. सो लेट अस चेक द डेरिवेशन फॉर द सेम अबाउट द पॉइंट सी पॉइंट की. ओके, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, इसके वजह से जो टॉर्क होगा अबाउट द पॉइंट सी वो क्या होगा, सी ए मल्टीप्लाइड बाय F1. सो यहाँ पे आ गया F1 इंटू सी ए और F इंटू सी ए. सो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्योंकि ऐसे फोर्स एक्ट होगा ऊपर का डायरेक्शन, तो उसको बॉडी को ऐसे घुमाएगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको. देन द टॉर्क ड्यू टू F2, अभी इसके वजह से F2 के वजह से अबाउट पॉइंट सी, राइट. तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको बी सी और सी बी. सो F2 इंटू सी बी, F2 इंटू सी बी, बट F2 क्या है, F2 इज द सेम एज दैट ऑफ F, दैट इज कैपिटल F. सो F इंटू सी बी इट इज़ ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है बॉडी पे, तो वो जो बॉडी है रिजिड बॉडी वो कैसे घूमेगी, इट विल रोटेट लाइक दिस, राइट, इट विल रोटेट लाइक दिस. सी आई एम अप्लाइंग दी कपल ऑफ फोर्सेज, दो, सी दिस फिंगर एंड दिस थंब, आई एम एक्सर्टिंग अ फोर्स लाइक दैट, इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमेगा. चाहे पॉइंट ये वाला लो आउटसाइड या ऑन द बॉडी लो, राइट. सो द कपल विल बी सेम, राइट. नाउ रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू कपल टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 एफ इंटू ए सी ए प्लस एफ इंटू सी बी, एफ सी ए प्लस सी बी. यहाँ पे देखो सी ए प्लस सी बी विल बी ए बी. ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी इज द आर्म ऑफ द कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड विच इज एंटी क्लॉकवाइज. सो फ्रॉम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन 1 कहाँ गया, इक्वेशन 1, लेट्स टेक दिस इक्वेशन 1, इसको 1 ले लेते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. सो वी कैन राइट द टॉर्क ड्यू टू कपल अबाउट एनी पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन is the same, that is which is independent of the axis of rotation. I hope you all have understood this derivation which can usually ask for 3 marks in exam. इसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल भी अपने को सॉल्व करने
we have to solve some numerical based on this, and this derivation is very very important. So please be prepared thoroughly. इसको एक दो बार लिखने की कोशिश करो एंड उसके बाद बाय हार्ट लिखने की प्रैक्टिस करो. तो एक बार आपका बाय हार्ट लिखने का प्रैक्टिस हो गया, सो यू विल रिमेंबर. इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, नथिंग एल्स. ओके, आई होप यू मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अभी इसके प्रॉपर्टीज ऑफ कपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू कपल, राइट. तो चलो, instead of studying the characteristic or properties of couple, I will directly take the difference between the torque due to force and torque due to couple. तो उसमें प्रॉपर्टी भी आ जाता है, सब प्रॉपर्टी आ जाएंगे. तो we will just take the difference between them. Okay, so torque of a force, torque due to force, torque due to force and torque due to couple. We call this turning effect. दोनों turning effect है. turning effect मतलब which gives the body into rotational motion. जिसके ये फोर्स की वजह से, कपल के वजह से या टॉर्क ड्यू टू फोर्स की वजह से बॉडी घूमती है, रोटेट होती है. नॉट अ ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, बट इट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट. तो पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट में हम लेंगे डेफिनेशन, राइट. सो फर्स्ट हम देखेंगे टॉर्क ड्यू टू कपल या टॉर्क ड्यू टू फोर्स पहले लेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इन द टॉर्क ड्यू टू फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? टाउ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, राइट, इट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, और विच कैन बी रिटन एज सिंपली आर एफ साइन थीटा, right. So product of magnitude of the perpendicular distance from the axis of rotation and the line of action of force. जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स का और जो डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपके. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड बोथ, ये जो थीटा है वो क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल होगा. दैट थीटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द टॉर्क ड्यू टू फोर्स इज मिनिमम, मैक्सिमम और इन बिटवीन, राइट. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला. मैथमेटिकली इसको याद रखना है और कुछ नहीं, राइट. सो देन हियर टॉर्क ड्यू टू कपल क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स, राइट. सो यहाँ पे भी टाउ जाएगा, ये भी टाउ आएगा. टॉर्क ड्यू टू कपल विल बी एनी वन ऑफ द फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two anti-parallel forces, anti-parallel forces. This is what the formula. तो ये भी क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर. ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है. ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दी फोर्स, फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, the single force. Okay, ये single force multiplied by the distance, perpendicular distance from axis of rotation, distance from axis of rotation. This is the first point. Then the second point क्या आएगा कि it depends on what factor, किस पे डिपेंड करेगा, राइट. सो it depends on the मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना आप फोर्स लगा रहे हो, एफ लगा रहे हो, कितना आर लगा रहे हो, और कितना एंगल थीटा है, उस पर डिपेंड करता है. तो सेकेंड पॉइंट इज टाउ डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ
आर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ आर्म भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि हम कोई दरवाजे को या किसी को भी ऐसे ऐसा हाथ लगाया, राइट, मान लो यहाँ पे पकड़ के रखा मैंने, सपोज ये विंडो है, राइट, तो यहाँ पे मैंने इसे पकड़ के रखा, ओके, सो आई एम जस्ट होल्डिंग लाइक दिस एंड सी, सो दिस इज व्हाट, तो ये जो हाथ है मेरा, दिस इज मोमेंट ऑफ आर्म, और ये हिंज है, दिस इज द हिंज एंड दिस इज माई बॉडी, आई एम रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके। तो फोर्स मैंने लगाया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, सो it is the depends on the magnitude of force and magnitude of moment arm or perpendicular distance and angle between R and F, okay. इट इज़ मैक्सिमम फॉर 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री था साइन 90 इज 1, तो जब परपेंडिकुलर होगा आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर जब होगा, दैट टाइम द मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन इट, जब तब ज़्यादा टॉर्क एक्ट होगा, ओके। देन यहाँ पे क्या आएगा, द सिमिलर पॉइंट फॉर दिस, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, ओके, क्योंकि एक फोर्स लगा तो दोनों अपने दोनों इक्वली लगने वाले, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन्स ऑफ एक्शन, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, line of action, right. Then the third point इसमें आएगा, due to this, ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या करता है, which produces an acceleration, okay, and also produce the translational motion if the axis of rotation is not fixed or if the friction is not enough, okay, produces rotational acceleration. This torque produces rotational acceleration. फोर्स लग रहा मतलब एक्सेलरेशन होगा ही, वेन एवर देयर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो इट मे बी एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर वो लीनियरली जा रहे तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ओके, ये डिफरेंस है। बट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, बट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन ये कब पॉसिबल है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इफ एक्सिस इज नॉट फिक्स, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स, फाइन, ओके। देन third point here, it produces only rotational acceleration, this will produce only rotational acceleration, fine. In the torque due to force में the single force is counterbalanced by the another single force. जैसे मान लो अभी ये बॉडी है, राइट, इफ आई एम टेकिंग दिस एक्स ऑफ रोटेशन और यहाँ पे फोर्स लगा है, सिंगल फोर्स लगा है, दैट इज द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, नॉट कपल मतलब दो फोर्स लगाना है, यहाँ पे मैं एक ही फोर्स लगा रहा हूँ, तो व्हेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, राइट, लुक एट मी एवरीवन, ये मेरा एक्स ऑफ रोटेशन है लेफ्ट साइड पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सी दिस फोर्स इज बैलेंस बाय और न्यूट्रलाइज बाय, अगर मुझे ये फोर्स को न्यूट्रलाइज करना है, राइट, तो मुझे इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, इफ मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है फॉर इक्विलिब्रियम, then I should apply the force here in opposite direction, okay. So torque of a single force can be balanced by equal and opposite torque of another force, okay. So that point, fourth point is, that is the fourth point, can be torque of a single force, torque of a single force
can be balanced by equal in magnitude and opposite direction. Okay, equal and opposite torque of another, equal and opposite torque of another force, वो उसको बैलेंस करेगा, राइट. इधर क्या होगा, द टॉर्क ऑफ कपल कैन बी बैलेंस बाय द इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क ऑफ अनदर कपल. ओके, अभी देखो यहाँ पे, लेट मी यूज समथिंग एल्स. If I want to open this cap of the bottle, right, so when I am applying the couple here, so here now rotating anti-clockwise, now this is clockwise. So anti-clockwise जो couple है, anti-clockwise couple balanced by equal in magnitude of the clockwise couple, हो गया balance. आया समझ में? This is anti-clockwise and this is clockwise. These are the couple, two forces are acting. In this way it will balance. So the torque of a couple is balanced by, or can be balanced by equal and opposite torque of another couple. So this is also this can also ask for 3 marks in the exam. So my dear, please take a screenshot. Now let's have the next topic, that is equilibrium, mechanical equilibrium, very important topic. Mechanical equilibrium. See, you might have observed that एक पैर पे ऐसे खड़े हो जाओ, एक पैर पे, how long you can stand on one leg, half an hour, 1 hour, कितना मैक्सिमम कितना खड़ा रहोगे. See, still I am disturbing, I am not able to stand on one leg for long time. See, this is called as equilibrium. हम उसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो कोई भी अगर बॉडी है, राइट, तो अभी देखो यहाँ पे, इफ आई एम होल्डिंग दिस बॉडी, सी, नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल, इट फॉल, देखो गिर रही हो. ये जो है ना, वी आप ये पेन को लिया, सिर्फ आई एम होल्डिंग दिस पेन, नहीं हो रहा है. बट इफ आई एम होल्डिंग दिस, यस, ओके, या दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. फाइन, ओके. दूसरा और लेंगे एग्जाम्पल. I have this कढ़ाई, बाउल शेप, एंड आई एम टेकिंग दिस बॉल, राइट. तो देखो अभी ये बॉल को, इट मूव्स, ओके, बट इफ आई एम होल्डिंग लाइक दिस, द बॉल रिमेन एट रेस्ट, so this is the equilibrium. Okay, this is the equilibrium, right? So stable equilibrium. Now if I am disturbing this, अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, so after some time it will come to its original position. Okay, now
सो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट. नाउ इफ आई एम होल्डिंग दिस बॉल दिस वे, see here, just observe this, very important. Before going to explain the concept, you must have the demonstration for that. अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ रहा है तो आगे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, पहले मैंने समझा दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट. अभी देखो, सी इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टैंड एट वन प्लेस. व्हाई? बिकॉज इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लोकल पॉइंट इज मैक्सिमम. यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी उसके कंपेयर लोकल में मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहा है. देखो कम हो गई, इट रोटेट्स, इट डिस्टर्ब, राइट. तो ये इधर आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिकम मिनिमम, राइट. यहाँ पे सपोज इफ आई एम कीपिंग एट द मिडल एट द सेंटर, सो इट विल रिमेन एज इट इज, स्टेबल है वो, राइट. अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, सी एज पे लाया, यहाँ पे लाया, आई एम ब्रिंगिंग दिस ईयर, ओके, यहाँ पे ला रहा हूँ, तो क्या होगा? इट विल ट्राई टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स लोकल पॉइंट मिनिमम, राइट. एंड व्हेन वी ब्रॉट एट द हाई पोटेंशियल, ओके, हाई पोटेंशियल लाया मैं, देखो आई एम ब्रिंगिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है एज पे, राइट. जैसे मैंने रिलीज किया इसको, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज फ्रॉम इट्स लोकल मैक्सिमम टू मिनिमम. मिनिमम पे हमेशा वो ट्राई करें. समझ में आ गया? और तीसरा जो एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल क्या होगा? इफ आई एम टेकिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड जस्ट पुटिंग दिस बॉल, सी इज द मिरेकल, राइट. बिकॉज दिस इज नोन एज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. मीन्स what on the horizontal plane surface at every point on this, okay, there is a stable neutral equilibrium. The forces जो sum of the forces है, resultant force यहाँ पे वो जीरो हो गया है, and that's why it is called as a neutral equilibrium. हम तीनों equilibrium देखेंगे. उसके पहले we will have the something about the how the rigid body in equilibrium, right. There are two type of equilibrium, translational equilibrium as well as rotational equilibrium. ट्रांसलेशन में भी दो टाइप है. इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, सो इट विल बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. एंड इफ द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, मान लो आई एम ड्राइविंग माई कार, ओके, एट 60 किलोमीटर पर आवर, कॉन्स्टेंट स्पीड से मैं कार चला रहा हूँ, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ माई कार? मेरी कार इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे, द सम ऑफ द फोर्सेस, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन माय कार इज जीरो. हियर ऑल्सो व्हाई दिस बॉल विच आई एम होल्डिंग ऑन माय हैंड, दैट इज विच इज एट रेस्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट. द वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स एक्ट अपवर्ड, एंड ऑल द फोर्सेस फ्रॉम अदर साइड्स. सो टोटल फोर्स जो हो रहा है, द सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है बॉल का, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज एंड दैट फोर्सेज आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेज. कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट सिंगल पॉइंट एट सेंटर ऑफ मास. तो अभी ये सिमेट्रिक बॉडी हम देखने वाले सेंटर ऑफ मास का, कल हमने डेफिनेशन देखा, कल परसों. तो सेंटर ऑफ मास में क्या है कि इट इज द पॉइंट inside the body where whole mass of the body supposed to be concentrated in order to describe the laws of motion. That point is known as center of mass. तो अभी ये सिमेट्रिक बॉडी है, राउंड शेप है, स्पीयर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज एग्जैक्टली लोकेटेड एट द सेंटर. तो स्पीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा सेंटर पे होगा यहाँ पे. तो इस पर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, ओके. So all these forces are called as concurrent forces. Concurrent forces. जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ें अगर डाउट लगा ना, कोई डेफिनेशन या नोट्स में या वीडियो देखते हुए कोई वर्ड का आपको अगर मीनिंग चाहिए, कंसेप्ट चाहिए क्या है, तो आप तुरंत गूगल में जाके भी आप वो जो पर्टिकुलर टर्म है वो देख सकते हो. आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. नॉट टू वरी, राइट. सब कुछ आजकल एक क्लिक पे अवेलेबल है. आप गूगल पे जाके भी उसके छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो आप देख सकते हैं. ओके, अगर कुछ डाउट है तो चलो लेट स्टार्ट विद द बैलेंसिंग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ओके, उसका थोड़ा कंसेप्ट हम समझ लेंगे.
देखो इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द बैलेंसिंग और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ओके, एक्सप्लेन द बैलेंसिंग और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. दिस इज 4 मार्क क्वेश्चन. ओके, एक है कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, सो व्हेन द रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन. अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अभी देखो यहाँ पे आई एम स्टैंडिंग एट रेस्ट, तो आई एम एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और आई एम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन because I am not moving at all, right? Okay, so a rigid body is said to be in equilibrium if there is no change of state. There is no change state of motion. Change in state of motion. If the body is at rest, it will remain at rest. If the body is in motion with moving with the constant speed, it will remain in the state of uniform motion. Are you recalling something else? This is also related to Newton's first law. The Newton's first law states that every body continues in a state of rest or state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. That is the Newton's first law, which we stated earlier. Fine. So, if there is no change in velocity, then also it is translational equilibrium. Okay. So, if there is no change in velocity, it is said to be translatory equilibrium or translational equilibrium. Okay, the body is said to be in translational equilibrium. Okay, now this translational equilibrium have two static and dynamic, two types: static equilibrium and dynamic. Dynamic में क्या होगा? There is no change in motion. यहाँ पे there is no change in state of rest. The body will remain at the state of rest. Okay. Now what about the rotational equilibrium? तो rotational क्या होगा? Rotational body is said, the rigid body is said to be in rotational equilibrium. Okay. The rigid body said to be in rotational equilibrium. Okay. If there is no change in rotational state. Okay. There is no change in rotational state of the body. If there is no change in rotational state of the body. देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको काफ़ी लिखना है इसमें. ओके, शॉर्टकट में नहीं चलेगा. So you have to write, elaborate properly. Rotational equilibrium, if there is no change in the rotational state of the body, that body said to be rotational equilibrium. If there is no change of state or change of motion, linear motion, then that body is said to be in translational equilibrium. Okay. Abhi now let us see what are the conditions for translational equilibrium. Okay. So first, the condition for conditions for translational equilibrium. ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे कोई भी बॉडी अगर मूव हो रही है या द बॉडी इज एट रेस्ट, उस पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे फोर्स रहेगा, राइट, नॉट टॉर्क नहीं रहेगा. टॉर्क किस में लेते हैं हम लोग? रोटेशनल मोशन में टॉर्क रहेगा. हियर द बॉडी इफ इज एट रेस्ट और द बॉडी इज इन मूविंग linear motion में है, then whatever the force are acting, total forces, sum of the forces acting on a body will be 0. मतलब जब resultant force act on a body will be 0, at that time the body is said to be in a translational equilibrium. So that is the first condition. Okay, so here the by using Newton first law, यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, और मैंने अभी भी बताया कि as the
the body said to be in translational equilibrium is the resultant force acting on it is 0. Okay. So the first condition is if sum of F is equal to 0. What is sum of F? F is equal to, so F is equal to F1 plus F2 plus F3 plus dash 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 Fn. Okay. So here sum of the forces Fi, where I is equal to 1 to n, which is equal to 0, right? That is what. तो यहाँ पे सब forces क्या होगा? 0 होगा. अगर मान लो तो forces are acting और external force, you can say external force, F external आएगा. Okay, I is equal to 1 to n, which is 0. External force acting on a body is 0. Okay. So if the forces are having a component along x and y and z axis, so summation of Fx will be 0, summation of Fy will be 0, summation of Fz is equal to 0 to all three coordinate axis. तो सब जगह तीनों डायमेंशन में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. एंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0. देन द बॉडी सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस. ओके, पहला कंडीशन, राइट. तो इसमें एक ही कंडीशन है. उसके बाद we will talk about the rotational equilibrium. Okay, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So let's talk about the rotational equilibrium. यहाँ पे हमने क्या ट्रांसलेशन में क्या लिया? रिजल्टेंट फोर्स, जो फोर्स एक्ट आ रहा है 0 हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 0. इसमें अगर बॉडी सेट बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके, मान लो इफ आई एम टेकिंग सम वेवलेट, अभी मेरे पास वेवलेट है, राइट. I want to keep this in rotational equilibrium. See, it is moving. So this is in rotational equilibrium. This is in rotational equilibrium. So how can we say that? The torque, the total torque, जो भी torque due to couple जो भी है, या यहाँ पे torque due to moment of force, right? Torque due to force, sum of the forces जो भी act हो रहा है due to torque, that sum of the torque will be 0. यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा. देन द बॉडी सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अंडरस्टैंड? अभी फैन घूम रहा है, राइट, बट द सीलिंग फैन और द टेबल फैन जो भी विच इज एज फिक्स, उसको मैंने सीलिंग को फिक्स किया है, सीलिंग फैन को, राइट. तो जो विच इज स्टेबल, मतलब नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे. बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन आर मूविंग एंड दे आर मूविंग द कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. जो ब्लेड्स है they are moving, rotating about the axis of rotation with constant angular acceleration. Hence, तो constant angular velocity. Constant angular velocity. तो because of the constant angular velocity, the acceleration is 0. यहाँ पे acceleration क्या है? 0 है. And if the angular acceleration is 0, so the resultant torque acting on the fan is also 0. And hence, the ceiling fan or table fan always in the ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. दिस क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन एग्जाम. ये शायद टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, दे हैव आस्क्ड. तो जब भी आपको मैं असाइनमेंट दूंगा तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो इसकी कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज समेशन ऑफ टाउ. समेशन ऑफ टाउ इज 0. तो क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस समेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 and so on and tau n, which is 0. लेकिन टाउ का फॉर्मूला क्या है? टाउ कैन बी रिटन एज F1 R1 प्लस F2 R2, ओके, प्लस F3 R3 एंड सो ऑन. जो टोटल फोर्स है, जो टोटल टॉर्क है, दैट विल बी 0. ओके, तो यहाँ पे F1 F2 F3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दैट, राइट, बट दीज फोर्सेज आर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज. हियर F1 F2 एंड F3 आर vector form because force is a vector, are the non-concurrent forces. Non-concurrent forces.
this is possible because in rotational equilibrium non-congruent forces are acting, but still the total torque, the resultant torque is always 0. Okay, so this is the first ever condition which satisfied here. Okay, तो ये satisfied हो रहे and that's why so summation of tau I is 0. Okay, so we can write, यहाँ पे मैंने लिख दिया है tau 1 plus tau 2. सो दिस कंडीशन सेटिस्फाइड इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम. इतना भी लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट. सो बच्चों, नाउ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. सी क्वेश्चन आगे आ गया. लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फैन एज अ होल इज जनरली 0. लीनियर वेलोसिटी, राइट. इज इट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? जस्टिफाई योर आंसर. Is a fan rotating with constant angular velocity in rotational equilibrium? Justify yes. Okay, तो जो fan है, the fan is fixed at a ceiling which does not move, so it is in the state of translational equilibrium. Okay, as the tip of the blades or blades of a fan are rotating, so they are moving with the constant linear velocity, constant linear speed. Okay, so the angular acceleration is 0. And as the angular axis is 0, so the rotating fan is remains in the rotational equilibrium. लेकिन कब? जब मैं रेगुलेटर बटन ऑन किया, स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ेगा, एक बार मोशन में आ गया तभी, या जब बंद करूँगा ऑन करूँगा तब नहीं, when it is in normal position, right? Okay, so let's talk about the type of equilibrium. Type of equilibrium. There are 3 types. 3 टाइप है यहाँ पे, तीनों लिख लेता हूँ मैं एक साथ. Okay, so first is stable equilibrium, stable. Second is unstable, and third is neutral. Okay, stable equilibrium क्या होगा? When we are taking a ball, कोई भी एक बॉल ले लो, जैसे अभी मैंने सीजन बॉल लिया, ये बॉल को कढ़ाई में रखा, right? When I am holding in a bowl, okay, so it remain in the state of rest. Understand? So it is in the stable equilibrium. Even if I am displace this, अगर मैंने इसको displace भी किया, तो after some time it will regain its position. Understand? कुछ देर के बाद वो क्या करेगा? अपनी जगह संभाल लेगा. So this is the stable equilibrium. इसको हम क्या बोलेंगे? Stable equilibrium. इसका डायग्राम इमेजिन करेंगे. बॉल इन इट बाउल. ओके, तो ये जो बॉल है, दिस इज इन द एट, इट इज एट लोकल मिनिमम potential energy. If it displace initially, the ball displace little, okay, it will acquire its original position. So मतलब always at minimum potential energy, always at minimum potential energy, local level पे, okay, always at minimum potential energy at local point. So this is called as the stable equilibrium. अभी unstable equilibrium. Unstable में क्या होगा? If I am taking a bowl this way, ये बाउल लिया ऐसा, okay, and just try to keep the ball here. यहाँ पे बॉल रख दो. Just keep the ball over here.
will the ball will stable here? Not at all. It will try to move from higher potential level energy to lower potential energy. Potential energy क्या होता है? Because of its position, because of its configuration, right? तो यहाँ पे compared to this point is at greater height, okay, and that's why this point is the high potential energy, and it will displace to automatically low potential energy at local point, low potential energy level. So this is called as the unstable equilibrium. हम उसको क्या बोले? Unstable equilibrium. न्यूट्रल में क्या होगा? Take the horizontal surface and take the ball, right? At every point, कहीं पे भी, at every point on this, every point on the horizontal surface, so ball will remain in the equilibrium, okay, which is called as the neutral equilibrium. The sum of the forces acting on the ball is zero. Understand? So इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लेते, so that you will get a clear idea. Okay. देखो बच्चों, पहले फिगर में हम क्या लिख सकते हैं? द बॉल मोस्ट स्टेबल, बॉल इज मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है, आराम से रहता है बॉल, मोस्ट स्टेबल इन द, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इफ इट इज डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम पोजिशन एंड रिलीज, ओके, इट टेंड्स टू रिकवर इट्स पोजिशन. मैंने आपको डेमो भी दिखाया, राइट? सो इन दिस केस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज एट मिनिमम लेवल. लिख दिया मैंने, वही पॉइंट है. ओके, नाउ लुक एट दिस. अनस्टेबल में क्या होता है? बॉल इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज इफ इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब, थोड़ा भी डिस्टर्ब किया, सो इट मूव्स फर्दर फ्रॉम दैट पोजिशन. वो अपने आप मूव होगा, जो मैंने अभी दिखाया आपको. सी, इसका प्रॉपर डेमो दिखाता हूँ मैं आपको. ये दिस इज अनस्टेबल, देखो नहीं रुक रहा है, रुक ही नहीं रहा है. दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल एनर्जी, एट अ हायर पोटेंशियल एनर्जी. और ये क्या है? स्टेबल, बॉल रेस्ट पे, ओके. और इफ यू आर कीपिंग दिस हॉरिजॉन्टल, अगर डिस्प्लेस भी किया, रिमेन एट इक्विलिब्रियम, वापस डिस्प्लेस किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ. समझे? आई होप with practical demonstration you all have understood this point of the equilibrium. बहुत easy है, and hence we can so सब पॉइंट आ गए यहाँ पे. इक्विलिब्रियम में सिस्टम इज कांस्टेंट ओवर अ प्लेन, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट हियर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is constant or constant, is constant at any point, fine, even if the ball is disturbed, okay, even if the ball is disturbed. It still remain in equilibrium, it still remain in equilibrium. So this is neutral. अब इसके बारे में क्या लिखेंगे? Here the unstable में potential energy of the system, potential energy of a system is at local maximum, is at local maximum initially, okay. यहाँ पे लिखेंगे initially potential energy of system is at local maximum if it disturb, okay, if disturb, अगर उसको डिस्टर्ब किया बॉडी को, if disturb it tries to achieve what energy? Potential energy minimum, okay, achieve configuration of minimum potential energy, right. So this is all about the types of equilibrium, stable, unstable and neutral. उसके पहले हमने देखा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसमें दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक. ट्रांसलेशन में ये वेयर द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो. In the rotational equilibrium, the body is said to be in rotational equilibrium if the total torque, जो sum of the torque है due to the superposition principle, right? तो sum of the torque जो acting on a body will be zero. Sum of tau is equal to zero. At that time, the given body said to be in rotational equilibrium.
ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट. हमने मोमेंट ऑफ कपल देखा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स देखा, टॉर्क ड्यू टू कपल देखा, और स्टार्टिंग एक डेरिवेशन में डेराइव किया है कि कपल एट अबाउट एनी पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स और विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ rotation. I hope you all have understood this. So have a good day. Bye bye. See you. Take care.